Hello everyone, I'm Professor Abhay Bua and I have a Masters in Construction Engineering and Management and currently serving as Assistant Professor in Kolkata University in the Civil Engineering Department. So let's get started the session. So in this session or in this series, we are going to discuss about the final year project. Now it can be applicable to any branch, but I will focus on the civil engineering. You can mimic it for your branch also. The video will be useful for the diploma student, degree student or MTech student, those who are currently in the pre-final year and now in the nearer future are going to belongs to the final year. Okay. So basically they must have to face project or any of the university or any of the curricular. You must have project as your final year or pre-final year. You may have mini project or you may face dissertation kind of works. So basically, firstly in this session we are going to discuss about how to choose your project according to civil engineering and how to find out the topics, how to find out the research paper as well as how to read it. And in the next session we will discuss more about the project. So it might take 2 to 3 videos to complete your project, under which we are going to cover up to how to write down your report. So basically project hota kya hai, so you can see that there are several icons. So basically firstly you need to search a topic or a problem. After that, whenever you are searching, you got many questions. You ask questions to your guide and they will return ask you some question. Again you are going to search the things, then you got some ideas about the latest research, then you discuss with your group members and you will be in the conclusion that as my curricular or for my degree purposes I will do this for the industry. So at last your topic will be finalized and you will work on it according to your plan. So basically after that you get several presentations, several comments by your guide as well as external guide or whatever curricular you have in your university or in your colleges. But in general you must need to do a project under some title relating to your field or your branch. So let's get started without wasting a time. सो बेसिकली व्हाट इज प्रोजेक्ट। सबसे पहला तो मतलब आपको प्रोजेक्ट क्यों करवाया जाता है या तो प्रोजेक्ट होता क्या है वो पता होना चाहिए। सो लेट्स गेट सिंप्लीफाई इट। सो बेसिकली प्रोजेक्ट होता क्या है तो कि आप लोगों को मतलब अंडर योर इफ सपोज आई बिलोंग्स टू द बीटेक, अगर मैं बीटेक की बात करता हूँ तो बीटेक के अंदर मतलब टोटल हम लोग 4 साल पढ़ते हैं। उसमें से आपको फाइनल ईयर में 7 सेमिस्टर और 8 सेमिस्टर के अंदर मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको प्रोजेक्ट ऑफर किया जाता है। ओके। तो बेसिकली होता क्या है तो कि आपको मतलब यहाँ तक काफी सारे मतलब सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। मान लो कि ईच एंड एवरी सेमेस्टर में आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो 3 साल तक अगर आप पढ़ते हो दो तो 12 × 3 करोगे तो 36 सब्जेक्ट ऑलरेडी आप पढ़ गए हो इंजीनियरिंग के। तो 36 सब्जेक्ट की थ्योरीज आपको पता है। कुछ सब्जेक्ट आप 7 सेमेस्टर में पढ़ोगे, कुछ सब्जेक्ट आप 8 सेमेस्टर में भी पढ़ोगे। तो इतने सारे सब्जेक्ट की थियोरी आपको पता है, बट प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है तो कि प्रोजेक्ट ऑफर आपको इसीलिए किया जाता है कि आप वो थियोरी को एक्चुअल फील्ड के अंदर कैसे यूज हो रही है, तो जो फील्ड प्रैक्टिस रहती है वो फील्ड प्रैक्टिस क्या रहती है उसके बारे में आपको पता चले। क्योंकि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर करिकुलर आप एक प्रोफेशनल कोर्स के अंदर पढ़ रहे हो, इट मीन्स कि यू विल बी अ प्रोफेशनल पर्सन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर करिकुलर। सो यू मस्ट नीड टू रिलेट द थियोरी विथ योर फील्ड और यू मस्ट नीड टू मेक अ इंटरकनेक्शन बिटवीन देम, तो वो आपको समझ में आए, इसीलिए प्रोजेक्ट मतलब ऑफर किया जाता है ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो कि बेसिकली आप लोगों को क्या करना है तो कि आपको जितने भी सब्जेक्ट ऑफर किए गए वो सारे के सारे सब्जेक्ट को मतलब आइडेंटिफाई करना है, उनको कंबाइन कर सकते हो, इंडिविजुअल ले सकते हो। उसके बेसिस पे आपको इंडस्ट्री के अंदर या तो फिर मतलब अपने यूजर डिफाइंड प्रॉब्लम मतलब फाइंड आउट कर सकते हो, इंडस्ट्रियल डिफाइंड प्रॉब्लम फाइंड आउट कर सकते हो। ओके। तो इंडस्ट्री के अंदर क्या इश्यू है वो अगर फाइंड आउट करते हो और उसको सॉल्व करने की ट्राई करते हो तो दैट इज नोन एज द इंडस्ट्रियल डिफाइंड प्रॉब्लम। और अगर आप यूजर डिफाइंड मतलब कि अपने हिसाब से मतलब कुछ ढूंढ के मतलब फाइंड आउट करते हो तो दैट इज नोन एज द यूजर डिफाइंड प्रॉब्लम। तो दो चीजें रहते हैं इंडस्ट्रियल डिफाइन में। आपका एक गाइड इंडस्ट्री की ओर से रहता है जो आपको गाइड करता है सारे के सारे टॉपिक्स के अंदर,
यूजर डिफाइंड के अंदर आप एक टॉपिक चूज करते हो, यूनिवर्सिटी या तो आपकी कॉलेज आपको एक गाइड प्रोवाइड करती है जो आपको सारी की सारी चीजों के लिए गाइड करता है। तो ये दो चीज होती है। जनरली मोस्ट ऑफ द केस लगभग लगभग 90% लोग यूजर डिफाइंड प्रॉब्लम को मतलब चूज करते हैं, बिकॉज इंडस्ट्रियल डिफाइंड प्रोजेक्ट में डिले हो सकती है या तो फिर आपका प्रोजेक्ट लंबा भी चल सकता है। सो इट में इफेक्ट ऑन योर करिकुलर, आपका जो शेड्यूल रहता है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन सारा का सारा उसको मतलब मैच नहीं करेगा। ओके, अगर जीटीयू की बात करें तो जीटीयू के अंदर एक मतलब विश्वकर्मा करके एक मतलब शुरू है करंटली स्कीम, जिसके अंदर अगर आप पार्टिसिपेट होते हो तो वो आपको मतलब एक गांव चूज करना रहता है वगैरह वगैरह चीजें। तो उसके बारे में हम लोग सेपरेट एक वीडियो बना देंगे व्हेन एवर वी गेट टाइम। करंटली आप मतलब कोई भी टॉपिक ले सकते हो। अब टॉपिक कैसे चूज करना है वो भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे ही सेमेस्टर शुरू होगा आपके मतलब कॉलेज से आपके हेड या तो फिर जो भी प्रोफेसर है वो आपको मतलब बोलेंगे कि प्लीज सिलेक्ट योर टॉपिक, सिलेक्ट योर टॉपिक, सिलेक्ट योर टॉपिक। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन दैट। तो सबसे पहला स्टेप रहता है डिसाइड योर पाथ। ओके, आपको आपका पाथ डिसाइड करना। पाथ डिसाइड करना इन द सेंस ऑफ क्या रहता है, तो क्या आपको सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जैसे आपने एडमिशन लिया था फर्स्ट ईयर में, तो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाया गया होगा एलिमेंट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ईसीई करके, या तो फिर आपको एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाया गया होगा बीसीई, बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ऐसा कोई एक टॉपिक तो आपको पढ़ाया गया होगा, अंडर विच सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी ब्रांचेस है उसके बारे में आपको थोड़ा ज्यादा यहाँ पर पढ़ाया गया होगा। तो वही चीजें यहाँ पर लिस्ट आउट की गई है, बट थोड़े से अलग मैनर में लिस्ट आउट की गई है कि आप मतलब इसमें से कोई भी एक टॉपिक या तो एक से ज्यादा टॉपिक को कंबाइन करके या तो 3 से 4 टॉपिक को एक दूसरे के साथ जोड़ के कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर प्रोजेक्ट ले सकते हो। ओके, जनरली बात की जाए तो आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग के ऊपर प्रोजेक्ट ले सकते हो, दैट इज रिलेटेड टू अर्थक्वेक। आप सर्वेइंग एंड लेवलिंग के ऊपर प्रोजेक्ट ले सकते हो। यू कैन चूज अ प्रोजेक्ट ऑन द इंजीनियरिंग मटेरियल की सीमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट लेना है, या तो फिर आप मतलब टिम्बर के ऊपर ले सकते हो, आप कोई भी कंक्रीट के ऊपर ले सकते हो, ब्रिक्स के ऊपर ले सकते हो, एग्रीगेट के ऊपर ले सकते हो, मटेरियल को अप्लाई साइड के ऊपर कैसे किया जाता है उसके ऊपर ले सकते हो, मटेरियल प्रोक्यूरमेंट के ऊपर ले सकते हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर प्रोजेक्ट ले सकते हो, फिर हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के ऊपर प्रोजेक्ट ले सकते हो। आपको एक टॉपिक पढ़ाया जाता है ट्रैफिक इंजीनियरिंग, टीई बोला जाता है ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ओके, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड अंडर दिस, इसके अंदर ही आ जाएगा। फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के ऊपर प्रोजेक्ट ले सकते हो, डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस के ऊपर प्रोजेक्ट ले सकते हो। यहाँ पर याद क्या रखना है तो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन द सेंस ऑफ कि यू कैन नॉट चूज प्रोजेक्ट टाइटल लाइक स्टडी ऑफ द गूगल स्केचअप और स्टडी ऑफ द ऑटोकैड, या तो फिर आप मतलब प्लानिंग करोगे ऑटोकैड के अंदर या तो 3D मैक्स में प्लानिंग करोगे, तो वो आपका टॉपिक नहीं रहेगा। सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस आर ओनली पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट। ओके, वो आपका प्रोजेक्ट का एक पार्ट रहेगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा इशू क्या रहता है तो कि काफी सारे सॉफ्टवेयर ऐसे रहते हैं जो मतलब क्या रहते हैं, पेड सॉफ्टवेयर रहते हैं। ओके, सो यू मस्ट नीड टू टेक अ पेड सब्सक्रिप्शन फॉर दैट टू वैलिडेट योर रिसर्च। या तो आप जो भी मतलब काम कर रहे हो उसके लिए आपको जो पेड सॉफ्टवेयर है उसका मतलब लाइसेंस वर्जन लगेगा, इन शॉर्ट, विच इज क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि काफी सारी यूनिवर्सिटीज में वो नहीं होता है। बट काफी सारी अभी करंट के टाइम पे देखा जाए तो आपको ऑटोडेस्क वाले मतलब स्टूडेंट लाइसेंस देते हैं, तो मतलब काफी सारा आपका सॉफ्टवेयर मतलब मिल जाता है। बट सॉफ्टवेयर आपको याद क्या रखना है तो कि सॉफ्टवेयर जो मैं यूज कर रहा हूँ अपने वो प्रोजेक्ट का मेरा सिर्फ एक पार्ट होगा, वो मेरा प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। आप कोई सॉफ्टवेयर सीख रहे हो कि मान लो कि आपने मतलब ई टेप सीखा स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए, तो ई टेप सीखना अपना प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। ई टेप्स मतलब सिर्फ आपके प्रोजेक्ट का पार्ट है कि आप ई टेप्स का इस्तेमाल करके क्या कर रहे हो तो कि एक प्रोजेक्ट को एनालाइज कर रहे हो, एक बिल्डिंग की डिजाइनिंग कर रहे हो, वगैरह वगैरह चीजें। ओके, फिर इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के ऊपर आप प्रोजेक्ट ले सकते हो, सॉइल मैकेनिक्स के ऊपर या तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के ऊपर भी आप प्रोजेक्ट ले सकते हो। इसमें भी काफी सारे टॉपिक्स है। अब प्रोजेक्ट मतलब टाइटल कैसा होता है, या तो प्रोजेक्ट होता क्या है, या तो कैसे प्रोजेक्ट, सजेस्टेड प्रोजेक्ट क्या है कि क्या प्रोजेक्ट ले सकते हैं, वगैरह वगैरह चीजों के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो ये हमारी वेबसाइट है सिविल इंजीनियरिंग स्किल्स। यहाँ पर जाओगे, जैसे ही आप यहाँ पर मतलब पहुंचोगे वहां पर आपको एक पॉइंट मिलेगा जहां से आप मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट के बारे में पता लगा सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ वेबसाइट पे जाके।
So this is our website. Firstly, you must need to log in with your Google ID. आपको आपका Google ID या तो यहाँ से साइन अप करना है। आप मेंबरशिप के लिए भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। एंड हियर यू गो गेट इन द रिसर्च टॉपिक। अब रिसर्च टॉपिक्स में जैसे ही जाते हो यू विल फाइंड आउट द लिस्ट ऑफ द टॉपिक। लाइकवाइज अगर मुझे कॉन्क्रीट के ऊपर काम करना है तो ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है, यहाँ से आप टॉपिक उठा सकते हो। उसके बारे में फिर आगे की जानकारी आपको अपने हिसाब से मतलब लेनी रहेगी। कैसे लेनी है वो सारी ये वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। प्लीज चेक इट आउट द वेबसाइट। सो लेट्स मूव अहेड। स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा? तो कि स्टेप नंबर 2 ऐसा रहेगा कि अभी सपोज मान लो कि मैंने एक टॉपिक डिसाइड किया कि मैं लीन कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करूंगा। ऐसा मैंने मतलब डिसाइड किया कि मैं लीन कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करूंगा। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा? तो कि मेरे पास डिफरेंट काइंड ऑफ सोर्सेज है जहां पर मुझे जाना पड़ेगा और मुझे क्या पता लगाना पड़ेगा तो कि करंट के टाइम पे लीन कंस्ट्रक्शन के ऊपर क्या क्या काम हो सकता है। तो आपने इनिशियल लेवल पे जो डिसाइड किया, ये जो लीन कंस्ट्रक्शन आपने डिसाइड किया वो क्या हो सकता है? वो आपका डोमेन हो सकता है। ओके, प्रोजेक्ट डोमेन ऐसा बोल सकते हैं उसको। कि मान लो कि किसी ने स्ट्रक्चर डिजाइन के ऊपर काम करना है तो स्ट्रक्चर इज द डोमेन। किसी को जियोटेक में काम करना है तो जियोटेक इज द डोमेन। किसी को ट्रांसपोर्टेशन में काम करना है तो ट्रांसपोर्टेशन इज द मेन डोमेन। आपको मेन डोमेन मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है तो कि ये डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स है, अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर जाना है। वहां पर जैसे आप जाओगे वहां से आपको मतलब अलग अलग रिसर्च पेपर मतलब देखने हैं और उसी के बेसिस पे आपको मतलब पता चलेगा कि करंटली मैं जो टॉपिक लेना चाहता हूँ उसके ऊपर किस टाइप की रिसर्च हो रही है, तो किस टाइप का वर्क हो रहा है या तो हो चुका है। सो ये आपको एक रेफरेंस मतलब प्रोवाइड करेगा। तो लेट्स चेक इट आउट। कुछ वेबसाइट देख लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज द टेलर एंड फ्रांसिस। कुछ ऐसी मतलब वेबसाइट इसकी है टेलर एंड फ्रांसिस की। आप चाहो तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। अब होगा क्या तो कि यहाँ पर आपको एक सर्च बार मिलेगा। मैं यहाँ पर मेरा टॉपिक लिख रहा हूँ लीन कंस्ट्रक्शन और सर्च कर रहा हूँ। जैसे मैं मतलब सर्च करता हूँ मुझे यहाँ पर अलग अलग आर्टिकल्स मिलेंगे लीन कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड। इसमें से मुझे अपने मतलब आर्टिकल ढूंढने हैं कि मुझे लीन कंस्ट्रक्शन, देखो आप मतलब हाईलाइटेड सारी चीजें रहती है। कोई भी आर्टिकल के ऊपर जाते हैं कि मान लो कि हेल्थ एंड सेफ्टी इंप्रूवमेंट इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लीन अप्रोच के बारे में मतलब बात की गई है। यहाँ पर गए तो आपको मतलब क्या मिलेगा तो कि कुछ डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जो आर्टिकल है उसके बारे में। और यहाँ से आपको मतलब उसकी DOI मिल जाएगी, फिर फिगर्स वगैरह जो भी यूज हो रही है वो सारी चीजें। और गेट एक्सेस वाला अगर आपको मिलता है इट मीन्स कि ये पेड आर्टिकल है। ओके, यहाँ पर एक और चीज अपने को डिस्कस करनी है कि मतलब आर्टिकल कैसे रहते हैं। तो कि आर्टिकल आपको यहाँ पर 2 टाइप के मिलेंगे। एक मिलेंगे जो कि मतलब फ्री एक्सेस मिलेंगे, जो फ्री रहेंगे। दूसरे वाले रहेंगे पेड वाले। अब पेड वाले आर्टिकल आप एज अ स्टूडेंट मेरे हिसाब से तो नहीं परचेज कर सकते। इवन आई एज अ प्रोफेसर कांट अफोर्ड इट बिकॉज दे आर अराउंड $20, $25, $10 आर्टिकल। सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू परचेज बेस्ड ऑन आवर इकोनॉमिकल कंडीशन। बट फ्री वाले आर्टिकल ऑब्वियसली अपनों के लिए मतलब PDF कॉपी है सारी की सारी अवेलेबल रहती है। तो जो पेड वाले आर्टिकल है वो कैसे लेंगे तो कि मान लो कि आपको कोई पेड आर्टिकल मतलब चाहिए तो क्या कर सकते हैं तो कि इसके लिए अपने पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आप जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो या तो जो भी कॉलेज में पढ़ते हो, सारी की सारी यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी अवेलेबल रहती है जहाँ पर ये सारी की सारी जो टेलर एंड फ्रांसिस या तो कोई भी अच्छी अच्छी जो भी मतलब आपकी जनरल्स वगैरह रहती है उसका सब्सक्रिप्शन रहता है। तो वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। इसके लिए आपको आपकी कॉलेज या तो यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करना रहेगा। दूसरा वाला एक मतलब रास्ता है जो कि एथिकल नहीं है। ओके, इट इज नॉट द एथिकल नहीं है। बट इफ सपोज यू फेल्ड इन दिस थिंग, अगर ये आपको यहाँ से एक्सेस नहीं मिलता है तो आप ये दूसरा वाला रास्ता इस्तेमाल कर सकते हो। बट आई सजेस्ट कि डोंट यूज इट एज अ स्टूडेंट और एज अपकमिंग इंजीनियर। इट इज नॉट एथिकल टू यू। बट मैं आपको दिखा रहा हूँ ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज। आप मतलब इसका इस्तेमाल कर सकते हो एजुकेशन पर्पज के लिए ही। सो बेसिकली आपको क्या करना है तो कि मैं गूगल के अंदर जाऊंगा एंड आई विल राइट डाउन SCI हब। ओके, SCI हब लिखने से मतलब मेरे को जो पहली वेबसाइट मिलेगी वहां पर जाऊंगा। ये वेबसाइट शायद दूसरी लैंग्वेज में आपको दिखे। यहाँ से मुझे चाहिए ये वाला आर्टिकल। तो मैं क्या करूंगा, इसकी DOI जो यहाँ पर लिखी है ये, या तो ऊपर से इसकी लिंक इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, जाके सीधा पेस्ट कर देंगे, ओपन करेंगे। इट माइट टेक टाइम, ये मतलब शायद टाइम ले सकता है। सो इट माइट हैपन कि आपको कुछ ऐसा भी मतलब वेरीफाई के बारे में भी पूछे। ओके, सो जस्ट डू इट, वेट, इट विल माइट टेक अ फ्यू टाइम। सो जब तक ये होता है तब तक वेट करते हैं।
सो आपको ये आर्टिकल मतलब वहां से मतलब मिल जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली मिल जाता है, कोई कोई आर्टिकल नहीं भी मिल सकते हैं। सो इट डिपेंड्स कि मतलब अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। ओके, बट मोस्ट ऑफ द केस के अंदर आपको आर्टिकल मिल ही जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तब तक के लिए बाकी की वेबसाइट देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो एक एकेडमिया के ऊपर भी आप जा सकते हो, यहाँ पर भी आपको काफी सारे आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे, यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हो लीन कंस्ट्रक्शन। एंड एज सुन एज यू गेट सर्च, अगर वहां पर जितने भी आर्टिकल अवेलेबल है जस्ट सर्च बेसिक, और जो भी आर्टिकल अवेलेबल है यू कैन डाउनलोड अबाउट दैट। ये सारी के सारे आर्टिकल आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आप सर्च को कस्टमाइज भी कर सकते हो कि आपको कितने सालों के आर्टिकल चाहिए वगैरह वगैरह चीजें, और बाकी की चीजें भी यहाँ पर लिखी है। आपको सिर्फ इंग्लिश आर्टिकल चाहिए तो इंग्लिश के ऊपर क्लिक करो, और कोई लैंग्वेज में चाहिए तो और कोई लैंग्वेज में भी जा सकते हो। नेक्स्ट वेबसाइट है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, तो कि मतलब अपनी एल्सवियर है। तो एल्सवियर में भी सेम चीज है, यहाँ पर जाके आप लीन कंस्ट्रक्शन लिख दो, यू विल गेट इट। ओके, आपको अलग अलग वेब मिल जाएगी जनरल, वहां से आप मतलब डाउनलोड कर सकते हो। देन लास्ट वन साइंस डायरेक्ट है, यहाँ पर भी सेम चीज है, कीवर्ड्स की जगह पे आप अपना मतलब जो भी चाहिए वो लिख दो, आपको यहाँ से मतलब आर्टिकल सारे के सारे मिल जाएंगे। ओके, कुछ आर्टिकल के अंदर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा जो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, कुछ के अंदर नहीं होगा जो पेड रहेगी। तो आप मतलब एज अ स्टूडेंट क्या करोगे, तो कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे एज कम्पेयर टू जो पेड। अगर आपको पेड वर्जन का सब्सक्रिप्शन मिलता है तो आप वहां से पेड आर्टिकल भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सबसे लास्ट में अगर बात की जाए तो सबसे लास्ट में रहता है अपना गूगल। तो गूगल के अंदर डायरेक्टली गूगल नहीं खोलना है, बट गूगल स्कॉलर खोलना है। ओके, इट इज डिफरेंट एज कम्पेयर टू गूगल। सिर्फ अगर गूगल की बात करोगे तो गूगल विल बी लुक लाइक दिस, जबकि गूगल स्कॉलर कुछ ऐसा दिखता है। गूगल स्कॉलर के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, लीन कंस्ट्रक्शन अगर लिखेंगे सो डायरेक्टली मुझे लीन के रिलेटेड सारी की सारी जितनी जानकारी गूगल के पास होगी वो सारी की सारी मिल जाएगी। कुछ ऐसी मतलब वेबसाइट है जहां से आप मतलब अपना सोर्स मतलब ले सकते हो, एंड दैट विल हेल्प यू आउट। वो सारी की सारी चीजें आपको हेल्प आउट करेगी। आगे बढ़ते हैं, तो कि फाइंड स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या है, तो कि अब तक आपको ये पता चल गया कि कहाँ से मतलब फाइंड करना है आर्टिकल आपको सारे के सारे, हाउ टू फाइंड योर रिसर्च पेपर एंड डाउनलोड इट मैंने ऑलरेडी बता दिया। पोर्शन कौन सा बचा, तो कि पढ़ना क्या है। अब मान लो कि मतलब आपने सर्च किया एंड आपको मतलब मिलेंगे लगभग 6000 आर्टिकल मिलेंगे लीन के ऊपर, तो आप 6 के 6000 पढ़ नहीं सकते। आप ज्यादा से ज्यादा एज अ स्टूडेंट की बात की जाए डिप्लोमा लेवल पे आप 6 आर्टिकल ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हो। अगर बहुत बड़ा रहा तो आप 6 से ज्यादा मतलब 10 आर्टिकल पढ़ सकते हो। डिग्री लेवल के ऊपर 4 या 5 बंदों का ग्रुप रहता है, तो इंडिविजुअल लेवल के, ये मैं इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल लेवल की। तो ऑन एन एवरेज मतलब बात की जाए तो डिग्री लेवल पे आप मतलब ऑन एन एवरेज हर बंदा 15 आर्टिकल मतलब पढ़ सकता है, उतना ही टाइम रहता है, क्योंकि आपको उसके साथ बाकी के सब्जेक्ट भी रहते हैं। एमटेक लेवल की बात की जाए तो आपको मतलब 60 से लेकर 100 आर्टिकल मतलब पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि एमटेक में आपको फाइनल ईयर में सिर्फ डेजर्टेशन ही रहता है, उसके साथ 1 या 2 सब्जेक्ट रहते हैं विच यू कैन इजीली मैनेज, जो इजीली मैनेज हो सकते हैं। ओके, तो अब इतने सारे आर्टिकल है, तो इसमें से मतलब कैसे पढ़ा जाए कि अपने को पता चले कि हाँ ये आर्टिकल ये अपने काम का है। मान लो कि आपने 10 आर्टिकल पढ़े डाउनलोड करके, फिर पता चला कि ये 10 में से तो एक भी मेरा काम का नहीं है, तो क्या होगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, एज वेल एज यू डोंट हैव एक्स्ट्रा टाइम, आपको एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं मिलेगा, एंड दिक्कत भी हो जाएगी। ओके, सो क्या करेंगे, तो कि उसके लिए हम लोग स्टेप नंबर 4 के ऊपर जाएंगे कि कैसे मतलब पढ़ना है। कोई भी रिसर्च पेपर आपने डाउनलोड किया हो तो वो कैसे पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो आपने जो भी फाइल डाउनलोड की है वो फाइल जो पीडीएफ कॉपी आपके पास अवेलेबल होगी उसको रीनेम करेंगे एज अ टाइटल ऑफ द पेपर। ये करने का फायदा क्या है, तो कि आपको उसको डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट में फायदा रहेगा। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट इन द सेंस ऑफ कि मान लो कि आपने 60 रिसर्च पेपर डाउनलोड किए, उसमें से कुछ मतलब लीन के ऊपर है, कुछ मतलब स्ट्रक्चर के ऊपर है, कुछ और कोई चीज के ऊपर है, तो आप वो टाइटल पढ़ के पता लगा सकते हो कि हाँ ये रिसर्च पेपर इसका है, ये इसका है, तो इजीली आप अंडरस्टैंड कर पाओ। दैट्स वाई हम लोग रीनेम करेंगे पीडीएफ का, और जो रिसर्च पेपर का टाइटल होगा उसी को ही हम लोग कन्वर्ट कर देंगे एज अवर टाइटल। ओके, फिर उसके अलावा क्या लगेगा, एक
पेन एंड पेपर की जरूरत रहेगी। अब पेन एंड पेपर की जरूरत क्यों रहेगी? कोई ऐसा भी बोल सकता है कि नहीं सर, मैं मतलब अपनी नोट पेन की जगह पे मैं डायरेक्टली जो भी कंटेंट है वो मतलब वर्ड कॉपी के अंदर लिखूंगा, या तो नोटपैड के अंदर डायरेक्टली लिख सकता हूँ, या तो मेरे पास मतलब इफ सपोज यू हैव एनी टैबलेट, लाइक आपके पास अगर आईपैड है या तो फिर मतलब कोई भी ऐसा टैबलेट है जिसके अंदर आप पेन से लिख सकते हो, यू हैव अ स्टाइलर, आपके पास सैमसंग का फोन है स्टाइलर वाला, देन इट इज ओके। तो मैं आपको मतलब ऐसा बोल सकता हूँ, यू कैन टेक अ डिजिटल नोट सो दैट इट कैन बी विथ यू फॉर द लॉन्ग टाइम। बट अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं टाइप करके मतलब अपने पास डिजिटल नोट्स बनाऊंगा, देन दैट इज द रॉन्ग आइडिया। मेरे हिसाब से उससे अच्छा आप एक मतलब डायरी ले लो जिसके अंदर आप लिखो, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू एनीथिंग एल्स। सो आई प्रीफर दिस थिंग। मेरे पास मतलब ये वाली चीज भी अवेलेबल है, बट रेदर देन दैट मैं ये ज्यादा प्रीफर करता हूँ नोट एंड पेन वाली सिस्टम। शायद मतलब ड्यू टू माई जनरेशन ऐसा हो सकता है कि मुझे ये ज्यादा पसंद है। बट या यू कैन गो डिजिटली, ओके, आप डिजिटली भी जा सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। अब कुछ मतलब फाइंडिंग रहेगी अपने को फाइंड आउट करने की कि क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है। जस्ट लिस्ट आउट दिस थिंग। आपके मतलब आप पास अगर कोई कॉपी अवेलेबल हो तो वहां पर ये चीज वीडियो पॉज करके लिस्ट आउट कर लो, तो आपको ज्यादा मतलब अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो बेसिकली वी फर्स्ट नीड टू आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ द पेपर। अब ये पता रहेगा तो ही यहाँ पर रीनेम करेंगे, वरना रीनेम कैसे करेंगे। फिर पब्लिश कहाँ पर हुआ है वो पता लगाना पड़ेगा, ऑथर की डिटेल पता लगानी पड़ेगी, टाइप ऑफ आर्टिकल पता लगाना पड़ेगा, नेचर ऑफ द वर्क पता लगाना पड़ेगा, डीओआई या तो यूआरएल पता लगानी पड़ेगी, कीवर्ड्स क्या रहते हैं वो पता लगाएंगे, मेन क्वेश्चन क्या था और आंसर क्या था। अब इनिशियल लेवल पे इतनी सारी चीजें पता लगाना क्वाइट डिफिकल्ट है, और सारे के सारे पेपर के लिए अगर आप पता लगाते हो तो इट विल कंज्यूम अ टाइम। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको मतलब एक शॉर्टकट, मतलब इसमें से जितनी मैक्सिमम डिटेल मिले उतनी मतलब पता लगाएंगे फॉर इनिशियल लेवल। उसके बाद हम लोग उसको सेग्रीगेट करेंगे, और जो भी अपने को फाइनल मतलब पेपर मिलेंगे, कि मान लो कि मैंने इनिशियल लेवल पे 100 पेपर डाउनलोड किए, ओके, उसमें से मैं मतलब सारी डिटेल, ये वाली डिटेल निकालूंगा जितनी पॉसिबल हो सके। फिर उसमें से मैं छान के मतलब कोई 20 पेपर फाइंड आउट करूंगा, और वो 20 पेपर के लिए हम लोग फिर बाकी की जो डिटेल यहाँ पर नहीं निकाली वो सारी की सारी निकालने की ट्राई करेंगे। ओके, तो जस्ट नोट डाउन दिस थिंग। हम लोग एक रिसर्च पेपर खोलते हैं और उससे आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। लेट्स गो हियर एंड लेट्स से कि मतलब एक पेपर है, सॉरी माय नेट इज नॉट देयर, या वेट, ओके, सो दिस इज द पेपर। ये एक पेपर अवेलेबल है। सबसे पहले तो उसको डाउनलोड करेंगे कोई एक जगह पे। लेट्स से कि ये डाउनलोड हो गया, इसको डाउनलोड सेक्शन में से मतलब निकाल देते हैं और कहीं पर मतलब जाके रख देते हैं। मैंने डेजर्टेशन में गया, डेजर्टेशन में जाके मैंने मतलब ये बनाया। ओके, अब क्या करेंगे तो कि इसको रीनेम करना है। रीनेम कैसे करेंगे तो कि यहाँ से ये नाम मैंने यहाँ से कॉपी किया। ओके, ओनली जस्ट कॉपी द नेम ऑफ द पेपर एंड देन गो टू द आर्टिकल, रीनेम करके ये मैंने रीनेम कर दिया। ओके, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, एक फोल्डर भी ऑलरेडी बना के रखा है, उसके अंदर मैं रख देता हूँ। अब ये क्या करेगा तो क्या आप देख सकते हो यहाँ पर दो पेपर है, कि दोनों के अंदर अलग अलग चीजें। एक पेपर है अप्लाइंग द लीन थिंकिंग इन कंस्ट्रक्शन एंड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, और दूसरा वाला पेपर है जो अभी हम लोगों ने डाउनलोड किया, अ स्टडी ऑफ द लीन कंस्ट्रक्शन एंड विजुअल मैनेजमेंट। ओके, तो इससे मुझे डायरेक्टली पता चलता है कि दोनों पेपर अलग अलग है, एज वेल एज मुझे कौन से पेपर की जरूरत है। यू कैन ऑल्सो रिमेम्बर बाय दिस, बट ये लॉन्ग टाइम के ऊपर आप भूल जाओगे बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस। सो इसको यहाँ पर खोल देते हैं पेपर को। आप जो भी मतलब ये यूज करते हो उसके बेसिस पे आप देख सकते हो 10 पेज का मतलब पेपर है। अब इसमें से कुछ चीजें आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। ओके, सो लेट मी, सो सबसे पहली बात करते हैं तो कि ये पेपर जो हमारे पास अवेलेबल है उसका टाइटल क्या है। तो टाइटल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, दिस थिंग इज द टाइटल ऑफ द पेपर। ये टाइटल है पेपर का, तो आप उसके अकॉर्डिंगली पता लगा सकते हो कि हाँ ये टाइटल है। ओके, तो लगभग सारी जनरल के अंदर टाइटल मतलब आपको ऐसा ही दिखेगा। कोई भी जनरल में पेपर पब्लिश हुआ हो तो आपको टाइटल ऊपर की ओर ही दिख जाता है डायरेक्टली, एंड यू कैन इजीली आइडेंटिफाई। ओके, अब किसने पब्लिश किया, ऑथर ऑफ द पेपर, मतलब पेपर का ऑथर कौन है। तो यहाँ पर दो नाम लिखे, एक तो सौरव सिंह का नाम लिखा है और एक कुशाल कुमार का नाम लिखा है, सॉरी कौशल कुमार का नाम लिखा है। आई अपोलोजाइज फॉर दैट।
दोनों कहाँ से है तो कि उसके बारे में डिटेल यहाँ पर लिखी गई है। वो अपने को उतनी ज्यादा काम की नहीं है, बट यू कैन रिफर इट, ओके, आप देख सकते हो एक बार की। लेकिन ये जो ऑथर है वो अपना काम का चीज है। उसमें जो स्टार मार्क किया इट मीन्स कि दिस इज द फर्स्ट ओनर ऑफ द पेपर, ये पहला ओनर है पेपर का, और ये सेकंड वाला ओनर है पेपर का। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ओके। आगे बढ़ते हैं, नीचे की ओर थोड़ा सा जाएंगे तो यहाँ पर आर्टिकल का इन्फो दिया गया है। इट मीन्स कि ये आर्टिकल की हिस्ट्री के बारे में बताता है। तो 18 जनवरी को 2020 को इन लोगों ने पेपर मतलब भेजा था अपना पब्लिश होने के लिए। 1 अप्रैल 2020 को रिसीव्ड हो गया, एक्सेप्ट हो गया 19 अप्रैल को, और ऑनलाइन हो गया 18 जुलाई 2020 को, ओके। सो बेसिकली यहाँ पर मतलब कीवर्ड्स है जो भी अपने को पता लगाने थे, कीवर्ड्स वो भी यहाँ पर लिखे गए हैं, ओके। तो कुछ डिटेल आपको देख सकते हो डायरेक्टली मिल रही है। फिर बात करते हैं डीओआई की। डीओआई कहाँ से मिलेगी, तो कि डीओआई के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा। यस, यहाँ पर ये आप देख सकते हो, दिस लिंक, दिस इज योर डीओआई। ये आपकी यूआरएल है, यहाँ से आप मतलब ले सकते हो डायरेक्टली डीओआई के फॉर्म में। रिकमेंडेड आर्टिकल क्या दिखाएंगे, तो कि ये आर्टिकल आप पढ़ोगे, आपको अगर आर्टिकल काम आता है या तो आपके काम का है, तो उसी के बेसिस पे आप मतलब उसके जैसे दूसरे आर्टिकल यहाँ से ढूंढ सकते हो। तो जब भी आपके गाइड आपको ऐसा बोले कि मिनिमम 5 रिसर्च पेपर ढूंढने हैं, तो इजीली आप एक कोई भी ढूंढो, उसके बेसिस पे आपको बाकी के यहाँ पर ऑलरेडी मिल ही जाएंगे। सो आपका वर्क काफी मतलब इजी हो जाता है। करंट के टाइम पे हम जब लोग पढ़ते थे तब ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, बट नाउअडेज इट इज अवेलेबल, सो जस्ट एंजॉय दैट फैसिलिटीज, ओके। ये एडवांटेज है, कोई डिसएडवांटेज नहीं, आपको एक ही टॉपिक के पेपर मिलेंगे। उसके अलावा ये कहाँ पर पब्लिश हुआ है वो जानना है, तो ये यहाँ पर ऊपर की ओर लिखा गया है कि कहाँ पर पब्लिश हुआ है, ओके। ये जनरल का नाम है, वहां पर पब्लिश हुआ है। जनरल की वेबसाइट यहाँ पर लिखी गई है, जनरल कहाँ पर अवेलेबल है वो। बाकी सारी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हो, वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई है। यू कैन रिफर दैट थिंग कि यहाँ पर पब्लिश हुआ है, ओके। अब इसके अलावा बाकी के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि बाकी के क्वेश्चन क्या है अपने। बाकी के क्वेश्चन में ऐसा है कि हम लोगों ने ये पता लगा लिया कि टाइटल ऑफ द पेपर क्या है, हम लोगों ने ये पता लगा लिया कि पब्लिश कहाँ पर हुआ है, हम लोगों ने ऑथर पता लगा लिया कि पेपर किसका है। अब आगे क्या पता लगाना है, तो कि आगे की ओर हम लोग पता लगाएंगे कि टाइप ऑफ द आर्टिकल, कौन से टाइप का आर्टिकल है, ये एक पता लगाना है। नेचर ऑफ द वर्क क्या किया गया है वो पता लगाना है। डीओआई हम लोगों ने पता लगा लिए, कीवर्ड्स हम लोगों ने देख लिए कि कहाँ पर दिए। मेन क्वेश्चन एंड आंसर करंट के टाइम पे रहने दो, पहले रीडिंग के अंदर हम लोग नहीं पता लगाएंगे। जस्ट ब्रिंग दिस ऑल डिटेल, बाकी की डिटेल आप एक बार पता लगा लो। ये दो चीजें अगर आपको मिलती है तो वेल एंड गुड है, पता लगाओ, बाकी अपने को उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, ओके। अब अपने पास जो आर्टिकल है उसके अंदर तो ये चीज क्लियर कट दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर की ओर यहाँ पर लिखा है कि आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग का पेपर है। इट मीन्स कि इसके अंदर आर्किटेक्चर रिलेटेड कुछ बात की गई होगी। अब रिसर्च पेपर है कि रिव्यू पेपर है, या तो रिसर्च पेपर क्या होता है, रिव्यू पेपर क्या होता है, वो सारे हम लोग सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो प्लीज स्टे कनेक्टेड अप टू द सेकंड पार्ट। शॉर्ट टाइम में हम लोग सेकंड पार्ट भी अपलोड कर लेंगे, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो इतना कुछ हो गया। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कि इसके बाद हम लोग स्टेप नंबर 5 के ऊपर जा सकते हैं। स्टेप नंबर 5 क्या है, तो कि रिसर्च पेपर मतलब कैसे पढ़ा जाए, ओके। एक रिसर्च पेपर जो है वो पढ़ा कैसे जाए। यहाँ पर रिव्यू पेपर भी हो सकता है, आपके पास रिसर्च पेपर हो या तो रिव्यू पेपर हो, कैसे पढ़ा जाए। तो कि कंटेंट ऑफ द रिसर्च पेपर, कोई भी रिसर्च पेपर ले लो, उसके अंदर आपको ये कंटेंट दिखेंगे, कोई चीज ऊपर रहेगी, कोई चीज नीचे रहेगी, इट डिपेंड्स, बट इतने कंटेंट तो आपको देखने को मिलेंगे। उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है, इंट्रोडक्शन आ जाता है, लिटरेचर रिव्यू आ जाता है, मेथोडोलॉजी आ जाती है, डेटा कलेक्शन आ जाता है, डेटा एनालिसिस आ जाता है, रिजल्ट एंड डिस्कशन आ जाता है, एंड कंक्लूजन आ जाता है, और लास्ट में रेफरेंस, जो अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। दिस इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल द थिंग्स, ओके। अब मैंने क्या किया, तो कि मेरे पास इनिशियली 60 पेपर थे, 60 में से मैंने कोई एक पेपर चूज किया, वो पेपर मुझे पढ़ना है। अब पढ़ने के लिए भी मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं पूरा का पूरा 10 पेज का पेपर पढ़ूंगा फिर वो समझूंगा, तो उसमें तो काफी ज्यादा टाइम जाएगा, ओके। एज अ स्टूडेंट बीटेक या तो डिप्लोमा लेवल पे ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है पढ़ना, क्योंकि काफी ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, और ये भी पता नहीं लगता कि ये पेपर मैंने पढ़ा वो मेरे काम का है कि नहीं, ओके। तो उसके लिए मैंने मतलब एक शॉर्टकट बनाया है। सबसे पहले मतलब आपको क्या करना है, तो कि ये स्टेप फॉलो करने हैं, और उसी के बेसिस पे अगर आप स्टेप फॉलो करोगे तो आपको इजीली मतलब कोई भी पेपर आप इजीली रीड आउट कर पाओगे विद इन अ फ्यू मिनट्स।
ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट के अंदर आप कोई पेपर का ओवरव्यू ले सकते हो और आधे घंटे के अंदर पूरा पेपर मतलब एक बार देख सकते हो। ओके, डिटेल के अंदर जाना चाहो तो इट विल टेक अ टाइम, ऑब्वियस की बात है। ओके, तो स्टेप नंबर 1 के अंदर क्या करेंगे, तो कि स्टेप नंबर 1 के अंदर पूरा जो पेपर है उसको 3 बार मतलब पढ़ना है, लेकिन पूरा पेपर नहीं। ओके, वी नीड टू रीड एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्लूजन 3 टाइम्स। एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन है उसको 3 बार पढ़ना है। अब ऐसा नहीं कि मैं मतलब पढ़ता जा रहा हूँ, एक बार पढ़ लिया चलो दूसरी बार पढ़ लिया चलो तीसरी बार पढ़ लिया, ऐसे नहीं पढ़ना। ओके, फर्स्ट रीडिंग करेंगे, पहली रीडिंग करेंगे तब क्या रहेंगे, तो कि ओरल रीडिंग होगी। ओरल रीडिंग इन द सेंस ऑफ ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे। ओके, सारी की सारी चीजें ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे। जो भी समझ में नहीं आता टेक्निकल टर्म्स वगैरह वो सारी की सारी चीजें मतलब नोट डाउन कर लेंगे अपने नोट एंड पेन में। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या कहा था, तो कि आपको नोट एंड पेन अपने साथ रखनी है जब आप रिसर्च पेपर पढ़ो तब। ओके, कोई डायरी रहेगी तो भी चलेगा। अब हमने क्या किया, तो कि टेक्निकल टर्म्स जो अपने को समझ में नहीं आया रिसर्च पेपर में वो हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया। अब क्या करेंगे, उसके बारे में पता लगाएंगे जो चीज समझ में नहीं आई तो गूगल करेंगे। सेकंड रीडिंग से पहले सारी की सारी टेक्निकल टर्म को अंडरस्टैंड करेंगे। फिर भी कुछ टर्म समझ में ना आए वापस दूसरी रीडिंग में, तो उसके बारे में भी मतलब अलग अलग सोर्सेज से पता लगाएंगे। अपने गाइड को पूछ सकते हैं, कोई प्रोफेसर को पूछ सकते हैं, कोई फ्रेंड को पूछ सकते हो, या तो फिर हमारी मतलब जो वेबसाइट है वहां पर आप डिस्कशन सेशन में आके कमेंट कर सकते हो। मैक्सिमम आपको आंसर देने की ट्राई करेंगे जितना होगा उतना। यहाँ पर आने के बाद क्या करेंगे, तो कि इसका थर्ड रीडिंग करेंगे। थर्ड रीडिंग वापस एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन का ही करना है, और आपको सारी की सारी टेक्निकल टर्म पता होगी तो आपको यहाँ से आइडिया क्या होगा, तो कि यहाँ से आपको इतना पता चलेगा कि ये लोगों ने क्या काम किया है, और मतलब आपका जो काम आपको करना है आपके प्रोजेक्ट के अंदर वो कैसे टाइप का होगा, उसका आपको एक डेटा स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि एक फ्लो टाइप का आपको मिल जाएगा। मतलब इन लोगों ने ये काम किया है, तो अगर मैं यहाँ की कंडीशन इंडिया के बारे में या तो आप जो भी कंट्री के हो वो कंट्री के अंदर प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसके बारे में अगर आप मतलब पता लगाओ तो यू कैन इजीली गो थ्रू दैट, कि आप मतलब आपको एक फ्लो चार्ट मिल जाएगा कि मुझे ये मेथड से मतलब काम करना है। ओके, अब सेकंड थिंग क्या रहती है, पहले तो मैं आपको एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्लूजन दिखा देता हूँ रिसर्च पेपर का, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेट अ मिनट। सो दिस इज द रिसर्च पेपर। ये रिसर्च पेपर है। एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर ऊपर की ओर ही रहता है, ईच एंड एवरी पेपर में आपको ऊपर की ओर ही एब्स्ट्रैक्ट मिल जाएगा। इसको आपको पढ़ना है पहली बार, और उसके बाद डायरेक्टली स्क्रॉल डाउन कर जाना है कहाँ पर, तो कि पेपर जहाँ पर खत्म होगा रेफरेंस लिखेंगे, रेफरेंस के ऊपर की ओर आपको कंक्लूजन मिल जाएगा, तो कंक्लूजन को आपको पढ़ना है। अब ये पढ़ने का एडवांटेज क्या है पहले वो बात कर लेते हैं। तो कि जो कोई भी अगर अपने पास क्या बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट अवेलेबल हो गए, लेट्स से वी हैव एब्स्ट्रैक्ट, तो एब्स्ट्रैक्ट बनता किसका है, तो कि एब्स्ट्रैक्ट की कुछ लाइन रहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, कुछ लाइन रहते हैं रिसर्च रिव्यू की, कुछ लाइन रहती है मेथोडोलॉजी जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट में यूज की है, और कुछ लाइन रहती है आपके कंक्लूजन की। तो ये सारी लाइन मिला के ये मतलब इतनी चीजें मिला के एक एब्स्ट्रैक्ट बनता है। तो आप इतना पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जिस बंदे ने जो प्रोजेक्ट किया है या तो जो रिसर्च की है वो प्रोजेक्ट करने के पीछे का रीजन क्या है, उसने कौन कौन से रिसर्च पेपर रिफर किए, उसमें से उसको कौन से टाइप का आउटकम मिला, उसने कौन सी मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया, उसके बारे में आपको पता चलेगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बिकॉज यू मस्ट नीड टू यूज सम मेथोडोलॉजी टू एनालाइज। और कंक्लूजन से पता चलेगा कि उन्होंने जो काम किया उसका कंक्लूजन क्या आया। ओके, सेकंड थिंग मतलब सेकंड क्या करेंगे, तो कि मतलब पहली बार पूरा पेपर पढ़ लिया, फिर ऐसा लगा कि चलो ये अपने काम का पेपर है तो उसको शॉर्टलिस्ट कर लेंगे अपने लिस्ट के अंदर। फिर क्या करेंगे, तो कि पूरा का पूरा जो पेपर है उसको मतलब एक बार पढ़ेंगे और नोट डाउन करेंगे डिटेल जो अपने को समझ में नहीं आती। अब ऑब्वियस की बात है कि काफी सारी डिटेल आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगी, कि मेनली तो आपको मेथोडोलॉजी के अंदर जो डिटेल रहेगी वही समझ में नहीं आएगी। थर्ड थिंग क्या करेंगे, तो कि फाइंड आउट द थिंग्स जो अपने को समझ में नहीं आया। कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो कि अपने गाइड के साथ, अगर आपके पास गाइड अवेलेबल है तो गाइड को डिस्कस कर सकते हो, या तो आप ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हो, गूगल सर्च कर सकते हो, उसके ऊपर वीडियोस हो गए वो देख सकते हो। कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई प्रोफेसर उसके एक्सपर्ट है तो उनको ईमेल करके मतलब पता लगा सकते हो। तो काफी सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है एट अ पॉइंट। ओके, मोस्टली आपके जो गाइड रहते हैं गाइड को आप मतलब पूछोगे तो आपके गाइड मतलब आपको गाइड कर देंगे यहाँ से। बट इससे पहले अगर गाइड के पास जाते हो तो मोस्टली आपको ऐसा सुनने को मिलेगा कि रिसर्च पेपर कलेक्ट करके आओ, पढ़ो, उसके बाद आओ। ओके, तो यहाँ तक का काम मतलब आपका हो गया।
स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, तो कि आपने जो आंसर फाइंड आउट किए क्वेश्चंस के बराबर उन सारों को मतलब लिस्ट आउट कर लो कोई एक जगह पे, जिससे आपको फ्यूचर के अंदर मतलब आइडिया रहे कि अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा हो तो आपको ये आंसर मतलब देने हैं। ओके, स्टेप नंबर 5 में क्या है, तो कि रिफर द रेफरेंस ऑफ द पेपर। आपने जो पेपर पढ़ा है, जो आपके काम का पेपर है, उसके रेफरेंस को पढ़ो। उसमें से कुछ आर्टिकल आपको आइडेंटिफाई हो गए कि ये आर्टिकल अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे और ज्यादा मतलब पता चलेगा, और उसको डिफरेंट सोर्सेज से फाइंड आउट करो। डिफरेंट सोर्सेज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। रिसर्च का मतलब जो रेफरेंस रहता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज द रेफरेंस। ये बंदे ने इतने सारे आर्टिकल पढ़े हैं, ये जो ऊपर जो कंटेंट लिखा है वो सारा बनाने के लिए। ओके, या तो रिसर्च के अंदर उसने इतने सारे आर्टिकल को रिफर किया है, इन सारे आर्टिकल में से उसने कुछ ना कुछ मतलब चीजों को मतलब लिया होगा, या तो ऐसा भी हो सकता है कोई आर्टिकल सिर्फ उसने पढ़ा है बट उसमें से उसने कुछ नहीं लिया है। ओके, तो ये सारे आर्टिकल यहाँ पर अवेलेबल है। ये सारे आर्टिकल आप भी पढ़ सकते हो, अगर आपको काम के लगे इसमें से कोई भी तो वो भी पढ़ सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू, बट यहाँ से आपको काफी ज्यादा हेल्प रहेगी। इट इज श्योर, ओके, 100% श्योर कि यहाँ से आपको कुछ ना कुछ तो मतलब ऐसा मिलेगा जो आपके प्रोजेक्ट में काम में आएगा। ओके, उसके बाद की बात करते हैं स्टेप नंबर 6। तो आपने नए आर्टिकल मतलब डाउनलोड किए जो आपको पढ़ने हैं, तो सेम प्रोसेस आपको रिपीट करनी है। अगर काम के रहते हैं तो उसको डेटा कलेक्शन के अंदर ऐड कर दो। गुड मैनर इन द सेंस ऑफ कि जैसा मैंने कहा वैसे मैनर में आप एक फोल्डर बनाओ रिसर्च टॉपिक का, उसके अंदर सारे के सारे आर्टिकल आप स्टोर करो। स्टोर करने के बाद उसको रीनेम कर दो टाइटल से, तो आपको मतलब पता लगेगा, या तो आप अपने हिसाब से कोई भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। जो आप ये कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं, डेटा मैनेजमेंट बोला जाता है। ओके, एंड दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वरना आपके मतलब लैपटॉप के या तो डेस्कटॉप के या तो आपके पास जो भी सिस्टम अवेलेबल है टैबलेट वगैरह, उसके अंदर आपको सिर्फ पीडीएफ फाइल ही मिलेगी जो कि मतलब 100 करके अलग अलग नाम की रहेगी, तो आपको काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी व्हेन एवर यू आर गोइंग टू फाइंड आउट। ओके, आगे की बात करते हैं तो कि अब तक आपको क्या क्या मिल गया है उसकी बात कर लेते हैं। तो कि आपको डिफरेंट टॉपिक रिसर्च टॉपिक के बारे में पता चला है कि क्या क्या टॉपिक आपने मतलब अभी तक फाइंड आउट किए हैं। टॉपिक के बारे में आपको वेरी बेसिक आइडिया मिल गया है कि क्या क्या आइडिया मतलब टॉपिक के अंदर आता है वगैरह वगैरह चीजें। बेसिक आइडिया मिल गया है कि आपको क्या करना है वगैरह वगैरह चीजें, और अब तक आपको एक गाइड भी मिल गए होंगे आपकी यूनिवर्सिटी या तो कॉलेज की ओर से, जो आपको और ज्यादा आगे गाइड करेंगे। सो ये सेशन यहाँ तक का है। अब यहाँ से आगे की बात की जाए नेक्स्ट सेशन के अंदर, तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, तो कि नेक्स्ट सेशन का प्लानिंग कुछ ऐसा है। अभी तक हम लोगों ने मतलब जो भी रिसर्च पेपर मतलब बनाए हैं या तो आइडेंटिफाई किए, जो पढ़े उसके बेसिस पे आपने मतलब अलग अलग क्वेश्चन के आंसर ढूंढे हैं, बट स्टिल 2 क्वेश्चन के आंसर बाकी रह गए थे, जो लास्ट के 2 क्वेश्चन थे उसके आंसर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है उसके आंसर कैसे ढूंढने वो पता लगाएंगे। फिर आपको एक रहता है लिटरेचर रिव्यू करना रहता है आपके मतलब ईच एंड एवरी मतलब प्रोजेक्ट के अंदर आपको थीसिस लिखते हो उसके अंदर भी रहता है, तो लिटरेचर रिव्यू कैसे कर सकते हैं इफेक्टिवली उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्लानिंग है नेक्स्ट लेक्चर का। तो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग कंटिन्यू रिसर्च पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद वाले लेक्चर में आपको मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में बताएंगे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी होता क्या है, क्वेश्चनरी सर्वे क्या होता है, एंड डेटा एनालिसिस क्या होता है। ये हम लोग नेक्स्ट मतलब उसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थीसिस कैसे लिखा जाता है, थीसिस स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फॉर्मेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे थीसिस के। एंड इन द लास्ट लेक्चर, अगर आपका लास्ट लेक्चर रहता है तो वहां पर आपका मतलब जो थीसिस रहता है उसके बेसिस पे आप रिसर्च पेपर कैसे लिख सकते हो, कैसे रिसर्च पेपर को पब्लिश कर सकते हो, वो हम लोग मतलब देखेंगे। तो यहाँ तक मतलब बने रहने के लिए यू मस्ट नीड टू फॉलो अस, ओके, कंटिन्यूअस फॉर्म में, बट मोस्ट प्रोबेबली आपका मतलब विद इन 1 मंथ हम लोग ये कंप्लीट कर देंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस सेशन। यू कैन ऑलवेज ज्वाइन अस, आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग स्किल्स के ऊपर। यहाँ पर आपको मतलब सारी की सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। And as usual you can subscribe it. We have just started a channel, so we have very few subscriber at a place, and if suppose you are subscribing, just press the bell icon so that you never miss any update. Please like if you like the session, and share with your friends so that they can also take a benefit of this. If you having any doubt related the project selection or anything, then just comment out your doubts. We will definitely try to solve it, or you can go to our website and write down in the chat box. We will also answer on that.
So thank you for the watching again. Stay connected and stay safe.